Assalamu alaikum. We have another lecture for Business Finance MGT 232, that is lecture number 12. We were studying about stock valuation and we'll continue that chapter. Let's have a brief overview of the last lecture. What we studied was we complete the difference between the bonds and the stocks. What are the bonds? Bonds are long-term debt instruments, while stock are the ownership instrument. They both are the financial assets and the financial instruments. The basic difference we found out between bonds and stock was, the first thing was the voting rights and the voice and management. Bonds do not have any voting right, they do not have any voice and management because they are not the owners of the company. While your stockholders do have a voice and management, they do have their say in the decisions of the company and they can suggest different suggestions to the company. Then we have the stockholders who have their voting rights. And when we talk about the voting rights, that means they can vote against each and every decision of the company because they are the owners of the company. So we have bondholders and we have stockholders. And we have another difference, that is on the preference of claims on assets in case of liquidation and distribution of income. When we talk about distribution of income, we found out that there is a set pattern. For example, the first thing, whenever we get operating income after paying off the operating expenses, that means employees को pay कर दिया. Operating income में से आप interest minus करते हो, that means you are paying to your creditors or to all those people to whom you owe. तो आप अपने bond holders को basically interest payment या आपने जिनसे लोन लिया हुआ है उनको पेमेंट कर रहे होते हो, जितने भी क्रेडिटर्स हैं. देन यू पे आउट योर टैक्स एंड आफ्टर दैट यू गेट सम नेट इनकम. दैट नेट इनकम इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टॉक होल्डर्स. बिफोर दैट एंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रिटेन अर्निंग्स रख ली जाती है, अर्निंग्स को रिटेन कर लिया जाता है. फिर जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके स्टॉक होल्डर्स में. स्टॉक होल्डर्स में भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड देन आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. Then we found out that there is a difference between the preferred stock and the common stock as well. When we talk about stock holding, we were talking the claims on assets, distribution of income. अब claims on assets की जब liquidation की बात करते हैं तो liquidate हो गई कंपनी liquidate हो गई, bankrupt हो गई. उसके assets के ऊपर claims हैं, जितने भी assets हैं उनको सेल आउट करके ऑक्शन करके जो अमाउंट हमारे पास रह जाती है उस सर्टेन अमाउंट को सबसे पहले तो आपके कस्टमर्स को दिया जाता है या और अदर एजेंसीज को, जनरल पब्लिक के लोग हैं उनको दी जाते हैं. देन उसके बाद आपके क्रेडिटर्स को एम्प्लॉयज को दी जाते हैं. देन क्रेडिटर्स को दिया जाता है बॉन्ड होल्डर्स, दैट मीन्स. और उसके बाद आपके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिनमें पहली प्रेफरेंस प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स और फिर आपके कॉमन शेयर होल्डर्स को दी जाती है. फिर आपकी एक डिफरेंस आ जाता है मेच्योरिटी पे कि आपके बॉन्ड्स की मेच्योरिटी डिफाइंड होती है जबकि आपके शेयर्स की मेच्योरिटी डिफाइंड नहीं होती. इट्स अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन कि आपकी कंपनी फॉरएवर है, फॉरएवर एग्जिस्ट करती है एंड यू डोंट हैव एनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी. ये मेच्योरिटी डेट है जिसके ऊपर आपके शेयर की जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो आपको वापस आ जाएगी. यस, यू कैन सेल योर शेयर्स, लेकिन आपकी कंपनी जो है आपको ओरिजिनल अमाउंट या आपकी इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल वापस नहीं कर रही होती है. Then there is a difference on return. In case of bonds, it's a fixed return in the form of fixed interest payment, while in the case of shareholders or the shares, it is dividend, and that is all on the discretion of the board of directors. It depends on the decision of the board of directors कि whatever decision they take, किसी fixed dividend देना है to the preferred stockholders, कब देना है और कितना देना है. To the common shareholders क्या इस साल देना है, नहीं देना, कि अगले साल डबल dividend देना है. And all those things are included in the differences of the bonds and the share. Then we look at different type of stock. Stock, basically, whenever we talk about stock, that is the piece of paper. It is a long-term contract that ensures the ownership of the investor. And we have two type of stocks, the preferred stock and the common stock. Preferred stock is basically another type of ownership of the company where the owner do not have any voting right, but they do have preference in case of claims of assets in liquidation, and they do have preference in case of distribution of income over common stockholders. Beside that, I already told you, they do not have any voting right. That means they do not have any say in the matters of the company.
इसके अलावा अगर आप वोटिंग राइट प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज अ हाइब्रिड और अ कॉसी सिक्योरिटी। दैट मीन्स इट्स अ सिक्योरिटी दैट इज जो कि सेमी सिक्योरिटी जिसके अंदर बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड एंड बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड शेयर्स दोनों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे हैव अ फिक्स्ड डिविडेंड। अब इसके ऊपर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स्ड अमाउंट होती है कि आपके जब भी स्टार्ट में प्रेफर्ड शेयर्स इशू किए जाते हैं तो बता दिया जाता है कि इतनी अमाउंट मिलेगी या एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम, जितनी इनकम अर्न होगी उसकी सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। इसलिए इसको लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं एज कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक। Now when we talk about characteristics of common stock, the first thing is your voting rights, जो कि बहुत important strong voting right है जो कि जिसमें ये allow किया जाता है कि shareholders in every annual general meeting they can vote against any decision, they can suggest any decision, they can take part in the decisions of the company, they can also look into the matters of the company, और कंपनी के किसी भी मैटर्स में वो बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, उनके एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी शेयर प्राइस और ये सब चीजें देख सकते हैं। दे डू हैव द वोटिंग राइट, और वो 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 शेयर। और अगर इन केस अगर कोई शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, एनुअल जनरल मीटिंग जो कि हर साल के एंड में की जाती है, वो अगर नहीं अटेंड कर सकता तो अपनी जगह किसी और शेयर होल्डर को प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके अपनी प्रॉक्सी लिखवाएगा। देन वी हैव प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट मींस के जब भी न्यू शेयर कंपनी इशू करेगी, दैट इज सेकंड पब्लिक ऑफरिंग या थर्ड पब्लिक ऑफरिंग, तो जब भी ऐसी कोई न्यू शेयर्स इशू किए जाएंगे तो ये आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि पहले उनसे पूछा जाए कि क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं क्या वो नए शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो नए शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो नए शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो दैट मीन्स के दे आर द वो उनके पास एक राइट है, प्रीएम्प्टिव राइट है, पहले उनको बेच दिए जाएंगे एंड देन उसके बाद जितने भी रिमेनिंग शेयर्स रह जाएंगे वो जाके जनरल पब्लिक को मार्केट में बेच दिए जाते हैं। ओके, देन वी हैव अनदर, दिस इज वोटिंग राइट एंड प्रीएम्प्टिव राइट। वी टॉक अबाउट प्रॉक्सी फाइट, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स खरीद लेते हैं तो वो अपनी जगह कोई प्रॉक्सी लगा के आपके मैटर्स ऑफ द कंपनी के अंदर भी बोल सकते हैं, आपको होस्टाइल टेक ओवर भी कर सकते हैं। इसको हम प्रॉक्सी फाइट कहते हैं। देन वी हैव अनदर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसको लेस प्रेफरेंस दी जाती है पर लेस होती है एज कम्पेयर टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के, जब भी क्योंकि हम इसको रेजिडुअल कॉमन स्टॉक को रेजिडुअल ओनरशिप पोजीशन इन द कंपनी कहते हैं। तो रेजिडुअल इनकम का मतलब ये है कि जब भी सारी इनकम पे कर दी जाती है टू योर क्रेडिटर्स एंड देन प्रेफर्ड इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टॉक होल्डर्स में, स्टॉक होल्डर में पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देन कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, तो वो जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दी जाती है दैट इज योर सर्टेन अमाउंट जो कि आखिर में बच जाती है, दैट्स अ रेजिडुअल इनकम। और सिमिलरली इन केस ऑफ क्लेम्स ऑफ एसेट्स तब भी ऐसा ही होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड, तो इसके कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होते, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि क्या वो इस साल देंगे, नहीं देंगे, किस तरीके से देंगे और क्या परसेंटेज सर्टेन अमाउंट होगी। अब कुछ इसमें स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक स्प्लिट्स, इस तरह की भी चीजें आती हैं, वो टाइम टू टाइम कंपनी पे डिपेंड करता है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स या प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को फैसिलिटेट करें। एक चीज जो कि डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपकी रिटेन अर्निंग हो जाती है उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो आपके प्रेफर्ड स्टॉक, और उसके बाद जो अमाउंट रह जाती है वो आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स द पर्सन इज ओनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 1 शेयर दैट मीन्स आई एम गोइंग टू हैव दैट एक शेयर पे जितनी नंबर ऑफ इनकम डिवाइड हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर इनकम रेजिडुअल इनकम आखिर में बच गई 1 लाख रुपया और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स जो है वो इश्यू किए गए, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे, फिर पर शेयर की प्राइस पता चल जाएगी कि इतनी पर शेयर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देन वी आल्सो टॉक अबाउट द स्टॉक वैल्यूएशन के वैल्यू किस तरह की जाती है। तो स्टॉक वैल्यूएशन या आपकी कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर भी यही चीज होती है कि आपके 2 किस्म के गेन्स होते हैं। वन इज योर कैपिटल गेन, दैट इज फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ योर शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर खरीदा और 10 का खरीदा, 12 का बेचा, तो दैट मींस जो 2 रुपीस का प्रॉफिट आपको आया, दैट इज योर कैपिटल गेन। सिमिलरली अगर लॉस हुआ तो दैट्स द कैपिटल लॉस। व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड गेन, दैट इज द गेन दैट द रिटर्न यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो वो जो कंपनी आपको देती है, तो द रिटर्न दैट इज गिवन बाय द कंपनी एज डिविडेंड, तो वो आपका डिविडेंड गेन होता है। Then we talk about preferred stock valuation. Preferred stock valuation may be found out that we can find out the value of a preferred stock with the formula VP is equals to DP over RP, where value of preferred stock is equals to dividend over dividend of on preferred stock over required rate of return on the preferred stock. और फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे
देन वी फाउंड आउट द कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन, जिसके अंदर हमने ये चीज डिफाइन की थी जो कि हम इस लेक्चर के स्टार्ट में भी डिफाइन करते हैं कि कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन में whatever कैश फ्लोज द शेयर होल्डर शुड एक्सपेक्ट, या वो रिसीव क्या करते हैं व्हेन ओनिंग द शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द फर्स्ट वन इज योर फ्यूचर डिविडेंड. दैट मीन्स whenever we have investment in the common stock holders, we have certain amount of future dividend जो कि रिटर्न आता है. रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलता है. एंड सेकंड इज द फ्यूचर सेल ऑफ योर कॉमन स्टॉक शेयर्स, जो कि हम कैपिटल गेन की बात कर रहे थे कि आपने लेट्स सपोज आपके पास कॉमन स्टॉक है, आपने अपने पास रखे और किसी भी पॉइंट इन टाइम में जाके आप अपने शेयर्स बेच देते हो तो सेल, उसकी सेल प्रोसीड्स जो होती है जो आपको मिलेंगी, दिस इज अनदर गेन. और ये इस किस्म के कैश फ्लो जो है आप रिसीव कर सकते हैं. दो टाइप ऑफ कैश फ्लोज, वन इज योर फ्रॉम द डिविडेंड एंड वन इज फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स. नाउ लेट्स लुक एट द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. Then there are different dividend valuation models. अब 3 different models हैं. The first thing हम जरा basic models देख लेते हैं कि basic dividend model valuation model क्या है. Now basic dividend valuation model accounts for the present value of all future dividends. That means जब भी हमने valuation की बात की है तो हम यही बात कर रहे थे पहले भी कि जब भी value of any asset हमने find out करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी present value of future expected cash flows, तो जितने भी future cash flows हैं उनकी present value find out करते हैं. When we specifically talking about the common stock, तो common stock में हमें डिविडेंड दिया जाता है एंड दैट डिविडेंड इज योर कैश फ्लोज. तो वो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आ रहे होते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू. Now let's look at the formula for dividend valuation model. It's a general formula जो कि सारे आगे basic dividend valuation model है, जिसको आगे हम अपने different models के अंदर use करेंगे, 3 different models के अंदर. The value of a preferred stock, that is P naught, is preferred or common stock, that basically we are talking about common stock valuation, so it would be value of a common stock or price of a common stock. So P naught is equals to dividend for the first year divided by 1 plus RS power 1 plus dividend for the second year over 1 plus RS power 2 plus up to so on till infinity, या till number of years end करते हैं इसको. तो till infinity हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि it's a going concern. Whenever we talk about the going concern of a company, that means कि आपकी कंपनी जो है वो it's a going concern forever company. हमारी जो assumption है that is कि it's a company for forever, that it's a company forever. जब जितनी टाइम के लिए भी वो रहेगी, कंपनी एग्जिस्ट करेगी, आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट फॉरएवर करते हो. इसीलिए कहते हैं थोड़ी सी रिस्क इन्वेस्टमेंट है पर बड़ी स्ट्रॉन्ग हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ऑप्शन होता है आपके पास. तो इसलिए हम इसको डिविडेंड को फॉरएवर कंसिडर करते हैं. अगर हम इसको एक सम अप फॉर्म में देखें तो दैट विल बी समेशन infinity to t is equals to 1 डिविडेंड फॉर ईयर टी ओवर 1 प्लस आर एस पावर टी. तो ये इसका एक समराइज्ड फॉर्म में, एक स्मॉल एक्सपेंडेड के बजाय छोटी फॉर्म में समराइज्ड फॉर्म में आपका आंसर इसका फॉर्मूला है. व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड तो डी आई वी 1 2 3 एंड डी आई वी टी हम कहते हैं, तो दैट्स अ कैश डिविडेंड एट द टाइम टी, क्योंकि हम कैश फ्लोज की बात करें और इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक द कैश फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो आपके डिविडेंड के फॉर्म में आता है. So that's cash dividend at time t. When we talk about RS, that's your equity investors required rate of return or market rate of return या required rate of return इसको कह देते हैं. तो equity investors required return. Okay, let's look at the adjusted dividend valuation model. अगर उसी को adjust किया जाए with this concept कि the company is the basic dividend valuation model adjusted for the future stock sale, क्योंकि हमने ये कहा था कि कंपनी जो है common stock valuation में हमने ये बात की कि 2 किस्म के कैश फ्लोज आते हैं. The first one is from your dividend, future dividend cash flows जो हमने इससे पहले मॉडल देखा, that is your dividend cash flow model जो कि dividend cash flow से आते हैं आपके. और when we talk about the future sales of the company तो हमने adjust किया है उसको कि अगर एक certain number of years है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है मैंने आज डिविडेंड खरीद लिया और 5 साल आज मैंने शेयर खरीद लिया, डिविडेंड में अर्न कर रही हूँ, 5 साल तक मैंने अर्न किया, 5 साल बाद मैं वो शेयर बेच दूंगी. तो 5 साल बाद अगर मैं शेयर बेच दूंगी तो उसके लिए क्या मेरी फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज पी नॉट इज इक्वल्स टू d1 दैट इज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर ओवर 1 प्लस आर एस पावर 1 प्लस डिविडेंड फॉर द सेकंड ईयर ओवर 1 प्लस आर एस पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू डिविडेंड फॉर द ईयर एन ओवर 1 प्लस आर एस पावर एन. और इस डिविडेंड फॉर द ईयर एन के लिए फॉर एग्जाम्पल 5th ईयर के लिए तो डिविडेंड फॉर द 5th ईयर प्लस प्राइस फॉर द 5th ईयर, कि आप उस साल के अंदर डिविडेंड तो ले रहे होते हो कि 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर पे भी आपने डिविडेंड लिया और उसके बाद आपने वो शेयर बेच दिया. 5 साल बाद आप वो शेयर बेच दोगे. शेयर बेचने के बाद यू हैव सम कैश फ्लो इन योर हैंड, दैट मीन्स कि आपने जितने का भी शेयर बेचा है तो वो आपके पास जो प्राइस आती है वो आपकी एक कैश फ्लो रिटर्न होता है जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं. सो डिविडेंड गेन प्लस कैपिटल गेन आपके लास्ट ईयर में आ जाएगा, वो ईयर जिसपे आप अपना शेयर बेच रहे हो, लेट्स सपोज 5th ईयर.
So where n is the year in which the firm shares are expected to be sold. आप expect ये करें कि 5 साल बाद मैं इसके shares बेच दूंगा. Price n is the expected share price in year n. So expected share price होती है. अब इसमें जितनी भी होती है हम सब futures expected rate ले रहे होते हैं कि future में इतना dividend आएगा. Future expectation हमारी ये forecasting की जाती है. Total overall forecasting होती है. When we talk about dividend तो आपको पता है कि DIV is dividend, RS is your required rate of return, P naught is the price or the value of a stock. Now let's look at the dividend growth model. अगर यही जनरल dividend growth model है तो how do we find out the value for dividend? किसी भी dividend की value किस तरीके से find out होती है? Let's suppose आज अगर मैं स्टॉक होल्डर हूँ, आज अगर कंपनी कोई इशू करती है, डिविडेंड इशू करती है, तो मैं कहूंगी ये आज का डिविडेंड है. दैट मीन्स डी नॉट, इट्स डी नॉट. जब हम नॉट की वैल्यू यूज करते हैं वो टुडे की बात हो रही होती है, आज ईयर जीरो के ऊपर. डी नॉट मीन्स जस्ट पेड डिविडेंड और रिसेंटली पेड डिविडेंड और डिविडेंड पेड टुडे. इस तरह के जब भी वैल्यूज वर्ड्स यूज होंगे तो दैट मीन्स जस्ट पेड डिविडेंड और रिसेंटली पेड डिविडेंड, डी नॉट. When we talk about D1, that means dividend for the first year. When we say it's D2, dividend for the second year. When we say it's D27, that means dividend for the 27th year. RS इसमें हमने जो यूज किया that's required rate of return. P naught is equals to price or value of a stock today. And whenever we talk about G is your growth rate. So let's look at the formula कि आप dividend कैसे find out करो. आपको first year का dividend तो पता है कि यार आज मुझे कंपनी इतना dividend देती है, या expect ये किया जाता है कि मैं अगर आज investment कर रही हूँ तो मुझे इसके साल के end में dividend मिलेगा. पिछले सारे सालों का ट्रेंड देखा, पिछले 5 साल या 10 साल का ट्रेंड देखा, उस ट्रेंड एनालिसिस की बेसिस पे आप फोरकास्ट करते हो कि आज इतना डिविडेंड मिल जाएगा. और इससे आगे देखते हैं कि अगर इतनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हर ईयर रही थी पिछले सारे सालों में, तो अब कमिंग अप ईयर्स में कितनी ग्रोथ होगी. तो पिछले साल अगर पिछले सारे सालों में 10% ग्रोथ रही थी, इसका मतलब है कि एक्सपेक्ट हम ये करते हैं ऑन एवरेज आगे एक्सपेक्टेशन ये है कि ग्रोथ रेट इसी तरह अगले 5 साल के लिए ऑन एवरेज 10% ही कंपनी ग्रो करेगी. तो हाँ स्लाइड चेंज हो सकता है क्योंकि फोरकास्टेड वैल्यूज है. तो इफ आई से 10% तो हो सकता है एक साल 11, एक साल 12, एक साल 13 हो रही हो उसकी ग्रोथ. तो दैट चेंजेस. तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं या हमने अगर उसकी वैल्यू सर्टेन वैल्यू फाइंड आउट कर ही ली है कि ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर लिया फोरकास्ट करके, और आज सर्टेन फोरकास्ट करके वैल्यू फाइंड आउट की कि आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो उसमें डिविडेंड कितना मिलता है, ये एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, दैट इज डी नॉट. और अगर हमने D1 फाइंड आउट करना हो तो हम अपने ग्रोथ रेट्स को यूज करते हैं. इफ यू कैन लुक एट द फॉर्मूला दैट इज D1, दैट इज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज D naught into 1 plus G. When we talk about dividend for the second year, that is D2 is equals to D1 plus into 1 plus G. Now if I talk about D15, that would be D14 1 plus G. सिमिलरली और सब तरीकों से आपके डिविडेंड इसी तरह की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कि आप पिछले ईयर के डिविडेंड को ग्रोथ रेट के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हो इस ईयर का डिविडेंड क्या है. Let's look at one of the question. Company recently issued a dividend of ₹5 per share. If it is expected to grow at 10%, find the dividend for the next 2 years. तो क्या है, कंपनी recently issued a dividend of ₹5. That means this ₹5 per share is the dividend. आज कंपनी ने recently issued a dividend, that's D naught. If it is expected to grow at 10%, that means वो expectation ये है कि वो 10% में grow करेगा, that is G. Find the dividend for the next 2 years, that means D1 और D2 के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल्स यूज करेंगे किसी भी किस्म का, तो उसके लिए टाइमलाइन बनाएं जरूर. मैं पहले भी कहती रही हूँ बॉन्ड वैल्यूएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इवन स्टॉक वैल्यूएशन के लिए टाइमलाइन जरूरी है. वो हेल्प करती है टू फाइंड आउट कि ओरिजिनल में आपकी वैल्यूज कैसे आ रही है या क्या ओवर द ईयर्स चेंजेस आ रहे हैं. So if it is a timeline 0, 1, 2 आगे कमिंग अप ईयर्स के लिए डी नॉट की वैल्यू हमें पता है, ये क्वेश्चन में दी हुई है कि डी नॉट इज इक्वल्स टू ₹5 पर शेयर. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. ग्रोथ कितनी है 10%. तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए ईयर 1 D1 एंड ईयर 2, दैट मीन्स हमने D1 एंड D2 फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज योर टाइमलाइन फॉर ईयर 2. अब इसमें हम करते हैं कि वैल्यू ऑफ D1 कैसे फाइंड आउट करेंगे. द फॉर्मूला फॉर यूजिंग D1 इज D naught into 1 plus G. The value of D naught is written in the question, that is 5 per share. 5 into G, we know that the growth rate is 10%. 1 plus 0.1. The answer would be 5.5 rupees for D1.
So we say that if the growth rate is 10%, the value of dividend for the first year is 5.5 rupees. Now when we talk about D2, that means D2, what is the formula for D2? D2 is equals to D1 into 1 plus G. Now please don't forget to have a paper and a pen and a calculator with you, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और बजाय इसके कि ये देखें कि मैं किस तरह कर रही हूँ, आप साथ साथ करते जाएं खुद ही. D1 is 5.5, जो कि हमें वैल्यू यहाँ से पता चली, हमने पहले D1 फाइंड आउट किया, दैट इज 5.5. D1 इज 5.5, G की वैल्यू है 10%, तो 1 प्लस 0.1 आ जाएगा. द आंसर वुड बी 6.05 रुपीज. दैट इज द वैल्यू फॉर D2. So the value, if the growth rate is 10%, the value for the second year, the value of dividend for the second year is rupees 6.05. Now let's look at other pattern assumptions of the growth dividend growth models. So dividend growth pattern assumptions, we have the dividend valuation models require the forecast of all future dividend. I tell you that कि इसमें I told you कि इसमें जितने भी आपके ग्रोथ रेट होंगे या आपकी आगे डिविडेंड कैश फ्लोज डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आएंगे, वो सब फोरकास्टेड होते हैं. अब मैंने इन्वेस्टमेंट की है एज एन इन्वेस्टर, मैं देखना चाहूंगी कि मुझे अब कमिंग ऑफ ईयर्स में कितने डिविडेंड मिलेंगे, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है, क्या ग्रोथ रेट होगा, कंपनी की क्या पोजीशन होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी. ये सब एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको बताता है, अपने इन्वेस्टर्स को बताता है या आपके ब्रोकर ज्यादातर बताते हैं. तो जब आप बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू गिव अ क्लियर idea to your investor. You have to tell them about the dividend, about the growth rate. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ट्रेंड एनालिसिस करें. ट्रेंड एनालिसिस इज कि आप अपने पास्ट ट्रेंड को देख के आगे फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो कि लास्ट पहले 5 ईयर या आपके 5th ईयर या 4th ईयर पे इतना पिछले 5th ईयर 4th ईयर 3rd, इससे पिछले 5 साल 10 साल तक ये ट्रेंड आ रहा था कि इतनी ग्रोथ, उसकी एवरेज फाइंड आउट की, उस एवरेज को हमने फ्यूचर में लगाया, फ्यूचर के लिए देखा. अब देखें बहुत ज्यादा चेंजिंग ट्रेंड्स भी होते हैं. अब चेंजिंग ट्रेंड का जो मॉडल है, लेट्स सपोज इफ यू लुक एट दिस थिंग, जब भी हम किसी भी स्टॉक की वैल्यू देखते हैं या प्राइस देखते हैं या डिविडेंड की वैल्यूज देखते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज आर गोइंग अप एंड डाउन एंड सम टाइम ऐसे. ये तो तब जबकि आपकी कंपनी जो है वो स्टेबल नहीं होती, बहुत ही ज्यादा वेरिएंस आ रही होती है उसके प्राइसेस के अंदर. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कि एक सर्टेन लेवल से आपका डिविडेंड मिला, उस डिविडेंड से हर एक, पहले अगर 10% इंक्रीज हो रहा था, अगले साल फिर 10%, फिर 10%, हर 10% पे वो इंक्रीज कर रही है कंपनी. ये एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ इंक्रीज करी है. ऑन एवरेज हम देख लेते हैं फोरकास्टिंग करके. एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ रेट आपका बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है. जैसे कि हमने बनाया कि लेट्स सपोज अगर एक साल 10% था तो अगले साल वो 8% हो गया. ठीक है, ये 10% पे गया एंड देन वो गिर के 8%, फिर वो एकदम 16% पे पहुंच गया. फिर कम ज्यादा कमी कांस्टेंट भी हो सकता है. एक सर्टेन लेवल पे हम उसको अज्यूम करते हैं वो कांस्टेंट है. जब हम ये कहते हैं कि देयर इज नो ग्रोथ, तो ग्रोथ की जब बात करते हैं कि देयर इज नो ग्रोथ, कोई सर्टेन परसेंटेज ग्रोथ आपकी है ही नहीं डिविडेंड की, तो हम कहते हैं कि जी इस 8% पे वो आया था, बस 8% के ऊपर ही इस कहीं इंक्रीज होने के बाद वो एक सर्टेन लेवल पे स्टेबल हो गया. वो स्टेबिलिटी या नो ग्रोथ नॉर्मली उन कंपनीज के अंदर आती है जो कि बहुत स्टेबल कंपनी होती है, या वो कंपनी जो कि स्टैग्नेशन लेवल पे पहुंच चुकी थी. आपकी बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनका या तो उनकी ग्रोथ, जब कंपनीज एक ऐसे सर्टेन फेज के अंदर होती है जिसके अंदर वो ग्रोथ उनकी बहुत नॉर्मल जा रही होती है. फॉर एग्जाम्पल न्यू स्टार्टअप कंपनी, स्टार्ट में उसके डिविडेंड या उसकी प्राइसेस शायद नेगेटिव होंगी, नेगेटिव करते करते दे विल मूव टू पॉजिटिव, और फिर वो एक्सपेंड करते करते ग्रो करते करते आपका ग्रोथ लेवल इंक्रीज होता जाता है. इसी तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी ग्रोथ रेट हर साल इंक्रीज हो रहा होता है. पर व्हेन वी टॉक अबाउट दोस कंपनी जो कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबल हो जाती है एक लेवल पे जाके, क्योंकि जी हर साल अगर एक साल उनकी इनकम 100,000 थी, अगले साल उनकी इनकम 100,001 या उनकी
100 मतलब बहुत स्लाइड चेंज आ रहा था। 100 एक साल थी इनकम, तो नेट इनकम अगले साल 100.1, 100.6, इस तरह स्लाइड चेंज आ रही थी। जो स्लाइड चेंज होती है तकरीबन नो ग्रोथ के इक्वल होती है, क्योंकि ऑन एवरेज उनकी ग्रोथ बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग होती है। तो इस तरह की तब होता है जब आपकी कंपनी बिल्कुल स्टेबल हो जाए और एक स्टैग्नेशन लेवल के ऊपर पहुंच जाए, तब आपकी ग्रोथ रेट बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स कंपनी ग्रो करिए पर एक सर्टेन लेवल के साथ, 10%, फिर 10%, फिर 10%, और वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये ऐसी मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से भी आप बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की या एप्पल की, तो वो इस तरीके से इंक्रीज कर रही है। और वेरिएबल वेरिएंस उन कंपनीज में आते हैं जो बहुत स्टेगनेंट नहीं होती, प्लस आपकी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी भी इफेक्ट हो सकती हैं, वो उन्हीं की ज्यादातर ग्रोथ रेट वेरिएबल भी होता है। डिपेंड की कंपनी किस फेज में है, कंपनी क्या स्टार्टअप कंपनी है, एंड इधर मतलब बहुत ऊपर पहुंच चुकी है, कैश काउ जो हम मार्केटिंग में कहते हैं उस लेवल पे, या बहुत एक सर्टेन नॉर्मल एवरेज ऑन एवरेज जा रही है। जब ऑन एवरेज की बात करते हैं तो कंपनी में बहुत वेरिएंस आता है। और प्लस ऐसी कंट्री में अगर कंपनी हो जहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होते हैं, आपके इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहां पे उनकी जो स्टॉक या उनकी जो इनकम होती है उसके अंदर वेरिएंस बहुत ज्यादा होती है, और उसके ग्रोथ रेट में भी वेरिएंस बहुत ज्यादा होती है। तो दैट ऑल डिपेंड्स, आप जो है डिफरेंट अजम्पशंस हैं जो कि और डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस के लिए वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाती हैं। नाउ द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल रिक्वायर्स द फोरकास्ट ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड। दैट मींस कि हम पिछले ट्रेंड्स को देख के अगले ट्रेंड्स को फोरकास्ट करते हैं कि ऑन एवरेज कितना कंपनी ग्रो करेगी, नहीं करेगी, और किस वेरिएबल किस लेवल पे वेरी करेगा उसका ग्रोथ रेट। So there are certain 3 level of growth rates और growth rate assumption होती है। The first one is your constant growth, that means कि constant certain level के ऊपर कंपनी grow कर रही होगी। Another is your zero growth, that means there is no growth। And we have growth phases, that means कि certain level पे कंपनी grow की, फिर decrease, फिर grow, फिर कभी 16%, कभी 18%, कभी 30%, कभी 8%, कभी 10%। तो increase decrease आपका variable growth rate चलता रहता है। Now let's look at another constant growth model. The first one, constant growth model. देखते हैं कि इसके assumption क्या है और इसमें क्या values किस तरीके से consider होती हैं। Now when we talk about constant growth model, the constant growth model assumes that the dividend will grow forever at the rate of G. That means एक certain constant rate के ऊपर। अब इस growth model को हम Gordon model भी कहते हैं। It is also called Gordon model because it was evaluated by Gordon Mayer. Gordon Mayer was the person who evaluated constant growth model. That's why we also called it as a Gordon model. And we assume that the company or the stock and the stock's dividend is growing at a constant growth rate. एक certain constant growth rate होता है जिसको हम represent करते हैं G से, तो उस growth rate, certain growth rate के ऊपर वो assumption ये हमारी कि constant growth के साथ वो increase कर रहा होता है या grow कर रहा होता है। So the formula for constant growth model is P naught is equals to D naught into 1 plus G whole over 1 plus RS power 1. D naught 1 plus G का मतलब यह है कि we are talking about D1. That's D1. Then we have plus D naught into 1 plus G power 2. That means it is D2. And then we are talking about D infinity. तो आपके इन्फिनिटी क्यों हमने कंसिडर किया है, क्योंकि फॉरएवर जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक आपके कांस्टेंट ग्रोथ आप कंसिडर कर ले, तो ये कांस्टेंट ग्रोथ के साथ रहेगी, और उसका आज अगर प्राइस फाइंड आउट करें और सर्टेन डिविडेंड हो तो क्या वैल्यू होगी। तो D1 ओवर 1 प्लस RS पावर 1 प्लस D2 ओवर 1 प्लस RS पावर 2 प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी D इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस RS पावर इन्फिनिटी। अगर हम इसको एक फॉर्म में लिख लें, P नॉट वुड बी इक्वल टू D1 ओवर summation D infinity to T1 1 plus RS power infinity. Now let's look at a few more things. When we talk about P naught, that means price or value for stock. When we talk about D1, that's dividend for the first year. When we talk about RS, that's required rate of return. When we talk about G, that's the growth rate. In case of constant growth model, क्योंकि हम कहते हैं कि growth rate constant है, तो हम सब years को consider करके summation की form में एक form में ले आते हैं। और when we talk about its formula, तो P1 या P naught की अगर आप बात करें तो constant growth का formula is P naught is equals to D1 over
RS minus G, where RS is your required rate, G is your growth rate, D1 is your dividend for the first year, and P naught is the price or the value of a stock. So when we this is P naught cap normally इसको use करते हैं. When we talk about P1 cap, that means it is dividend, it is the value or the price of a stock for the first year. तो हम उसमें dividend क्या use करेंगे? Forecasted dividend of the second year, dividend for the second year over RS minus G. When we talk about P13, that means कि क्योंकि हम अगले साल का dividend ले रहे होते हैं, तो P1 के लिए D2 over RS minus G, P13 के लिए हम कहेंगे it's D14 over RS minus G. When we talk about P27, that is D26 over D28 over RS minus G. So if I say if it's P50, so that would be D51 over RS minus G. Similarly इसी सेम पैटर्न के ऊपर चलते हैं हम आगे किसी भी ईयर के ऊपर प्राइस या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम ये करेंगे उस ईयर से आगे हमारे ग्रोथ कांस्टेंट जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है तो उस ईयर के ऊपर वैल्यू क्या होगी. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर योर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. लेट्स लुक एट वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. A stock CG has an expected growth rate of 8%. Each share of stock just received an annual rupees 3.24 dividend per share. The appropriate discount rate is 15%. That means the required rate of return. What is the value of the common stock? So question को ये thoroughly करके let's look at the data. The stock CG has an expected growth rate of 8%. That means your G is 8%. Expected growth rate है जो कि constant हम लोग consider कर रहे हैं. Each share of होना चाहिए था it's a expected constant growth rate. Each share of stock just received an annual dividend कितना है rupees 3.24 क्योंकि अभी receive किया that means we say D not just paid या recently paid होता per share 3.24 per share. The appropriate discount rate or the required rate of return is 15%. That means it is the value of RS. So what is the value of a common stock? That means हम आज कर लें कि value of a common stock today या just general भी बात की जाए तो it's P naught cap which is equals to D1. P naught cap is equals to D1 over RS minus G. D1 is अब D1 find out करना पड़ेगा हमें. D1 is equal to D naught into 1 plus G. D1 is equals to D naught की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन के अंदर that is 3.24. If the growth rate is 8%, the value of D1 is 3.50 rupees. This is the value for D1. Now let's put in the value for the formula into the formula of constant growth model. D1 is 3.5 whole over RS is your 0.15, that is 15%. Your growth rate is 8%, and if we find out the value, the answer would be rupees 50. You must have a paper, pen, and calculator to find out the answers. That means P naught cap की वैल्यू आपके पास भी 50 आनी चाहिए. अगर नहीं तो देख लें कि कहाँ पे चेंजेस किए. So simple calculator से you can find out the value of constant growth model. अगर हम इसकी टाइमलाइन बनाएं तो जो कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, चलिए अब देख लेते हैं. इट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4. दैट मीन्स हमारी ग्रोथ रेट कितनी है? 8% फॉर एवर कांस्टेंट है. D नॉट इज इक्वल्स टू 3.24. D1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वी आर फाइंडिंग P नॉट कैप. तो वो फॉर एवर आपका ग्रोथ रेट इसी तरह रहेगा. D2, D3 और उस पर वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. दिस इज द सोल्यूशन फॉर योर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. Let's look at another model, that is zero growth model. Zero growth model तब हमने जब तीन assumptions ली हैं, उनमें से पहली assumption हमने क्या ली थी कि हमारा growth rate जो है वो constant होता है. दूसरी हमने assumption ये ली थी कि आपका growth rate 0 होता है. तीसरी assumption हमने क्या ली थी कि आपका growth rate जो है वो changing growth rate होता है. So the first one was constant growth, तो उसके लिए हमने constant growth model use किया या Gordon model use किया. जब हम बात करते हैं no growth rate, that means it's a zero growth model. तो हम उसके लिए G is equals to 0, that means there is no growth. So the zero growth model assumes that the dividend will grow forever at the rate of G is equals to 0. That means there will be no growth, कोई भी ग्रो ना हो. अब देखिए no growth का मैंने पहले भी बताया कि stagnation या stability आ जाए किसी भी कंपनी के अंदर. That means कि एक certain level पे जाके आगे ये assume किया जा रहा है कि कंपनी के अंदर increase कोई नहीं आ रहा. अब इसमें ये किस तरीके से होता है? Let's suppose we have net income for different year. Let's suppose year 2000, year 2001, 2002 and so on. So we would say net income would be
For the first year is, let's suppose, 100. For the second year it is 100.1. For third year it is 100.2 या 100.21 इस तरह करके। फिर 2003 के लिए आपकी फिर आ जाती है 100। तो वो आपका जो एक सर्टेन लेवल, अगर आप इसकी ग्रोथ रेट चेक करो तो कितना स्लाइड 0.01 या 0.1% इंक्रीज, 0.1% इंक्रीज, जो कि बिल्कुल 0% के इक्वल। 100 ऑन एवरेज हम देखें तो इसका ग्रोथ रेट बिल्कुल 0 हो जाता है। तो जब ऐसी कोई केस आए जिसमें आपकी इनकम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आपकी इनकम इंक्रीज करे, या जब इनकम नहीं इंक्रीज करी तो डेफिनेटली आपके डिविडेंड्स भी उसी अमाउंट के साथ मिल रहे हैं, तो आपके डिविडेंड भी एक सर्टेन लेवल के साथ ग्रो नहीं कर रहे और एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही मिले जा रहे हैं, जो जो वैल्यूज हैं वही हर साल मिली जा रही है, तो हम उसको कांस्टेंट या जीरो ग्रोथ मॉडल कह देते हैं। तो जीरो ग्रोथ मॉडल जो है वो थोड़ा सा आपके प्रेफर्ड स्टॉक से मिलता है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड अलग दिया जाता है। जीरो ग्रोथ के अंदर डिविडेंड जो है वो कॉमन स्टॉक वाला होता है। सो लेट्स लुक एट द फॉर्मूला फॉर जीरो ग्रोथ मॉडल। वी हैव पी नॉट इज इक्वल्स टू d1 over 1 plus rs power 1 plus d2 over 1 plus rs power 2 plus d till infinity over 1 plus rs power infinity। इसके अंदर सेम वही फॉर्मूला जो हम अभी तक डिविडेंड ग्रोथ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसमें आपकी जो d की वैल्यू होती है infinity till t1 to infinity d over 1 plus rs power infinity और infinity। लेकिन इसके अंदर assumption ये होती है कि आपका ग्रोथ रेट 0, दैट मीन्स जब हम d1 फाइंड आउट करेंगे तो d1 is equals to d नॉट into 1 plus 0, d2 is equals to d1 into 1 plus 0, तो आपकी ग्रोथ रेट की हमेशा वैल्यू 0 आएगी। Let's look at an example of zero growth model. We have stock ZG has an expected growth rate of 0%. That means there is no growth. Each share of stock just received an annual rupees 3.24 dividend per share. जो ऐसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, the annual just paid dividend is 3.24. The appropriate discount rate is 15%. What is the value for common stock? Now let's look at the question again. We have an expected growth rate of 0%. That means G is equals to 0. We have no growth. जब भी जीरो आ गया या नो ग्रोथ आ गया, कहा कि कंपनी इज नॉट ग्रोइंग, दैट मीन्स के आप हमेशा अपना जीरो ग्रोथ मॉडल को यूज करोगे। When we say each share of stock just received an annual 3.24 dividend per share, that means 3.24 dividend per share means it is D naught, अभी भी पे किया। The appropriate discount rate is 15%. This is your RS. What is the value for common stock? अगर जीरो ग्रोथ रेट हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एक चीज देख लें, हमारे जो कॉमन स्टॉक का फॉर्मूला है जो समराइज्ड फॉर्म में आता है, दैट इज D1 over RS minus G. Now when we know that G is equals to 0, let's put in the formula. अब P naught cap is equals to D1. अब D1 की वैल्यू क्या होती है? D1 is equals to D naught into 1 plus G. ठीक है, D1 that is D1 is equals to D naught 1 plus G. ये वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की over RS minus G. Now let's put in the values. So P naught cap is equals to D naught into 1 plus 0 whole over RS minus 0. तो answer would be implies that P naught cap is equals to D नॉट ओवर RS, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट क्या है, वो 0 है, तो जीरो ग्रोथ रेट के साथ हमारा जो जीरो ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला आएगा, दैट वुड बी P नॉट कैप इज इक्वल्स टू D नॉट ओवर RS। नाउ इफ वी सॉल्व आउट या उसकी थोड़ी सी एवेल्युएशन की जाए तो इस तरीके से फॉर्मूला एवेल्युएट होता है कि G की जगह हम हर जगह 0 पुट कर देते हैं, एंड व्हेन वी पुट इन 0 तो हमारे आंसर, हमारे पास जो एक फॉर्मूला आता है, दैट इज P नॉट कैप इज इक्वल्स टू D नॉट ओवर RS। नाउ व्हेन वी से P नॉट कैप इज इक्वल्स टू D नॉट ओवर RS, क्योंकि हमारा जीरो ग्रोथ रेट है, तो हम यहाँ पे जब आंसर फाइंड आउट करते हैं तो D नॉट की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, द वैल्यू फॉर D नॉट इज 3.24 होल ओवर RS की वैल्यू कितनी है, 0.15। द आंसर वुड बी 21.60 rupees for P naught cap. That means if the growth rate is 0% and we have dividend of 3.24 and required rate of return of 15%, the answer would be 21.60 for the certain stock with a growth rate of 0% or with no growth. So the value of preferred stock for the value of this common stock with a zero growth rate is 21.60 rupees. Let's look at the third growth model, that is your variable growth model, या इसको growth phases model भी कहते हैं। different phases होते हैं इसके अंदर, इसलिए उसको variable growth model कहते हैं। Now let's look at, before getting into its detail, let's look at this thing first.
वी हैव सर्टन लेवल, लेट्स सपोज 10% पे हमने स्टार्ट किया, देखा कि इधर ग्रोथ इतनी हो गई, इसके बाद आपकी ग्रोथ जो है 10% से आपकी ग्रोथ रेट गई 20% पे, 20% से वो वापस आई 10% पे, 10% से वो 8% पे गई और नीचे आ गई, फिर वो जी सीधी चली गई है लेट्स सपोज किसी 30% पे, फिर 16% पे आ गई है, फिर वापस आ गई, फिर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ये जो वेरिएंस है आपके ग्रोथ रेट के अंदर कि कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, एक साल कंपनी की नेट इनकम लेट्स सपोज 1000 थी तो अगले साल उसकी नेट इनकम वाज 5000 रुपीज, उससे अगले साल उसकी नेट इनकम फिर डाउन होकर 2000 होगी, फिर इंक्रीज होकर 5000 होगी। तो वो जो वेरिएंस है आपकी नेट इनकम के अंदर डिफरेंट ईयर्स के ऊपर, तो जो नंबर ऑफ इयर्स के ऊपर डिफरेंस वेरिएंस आ रहा है वो आपके जब हम इनकी परसेंटेज ग्रोथ फाइंड आउट करेंगे तो वो परसेंटेज ग्रोथ जो है वो हमें वेरिएंस होगी, क्योंकि वो बिल्कुल वेरी करेगा फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर टू 3 ईयर, तो हर साल के साथ साथ वो चेंज करेगा, वेरी करेगा। जब ऐसा ग्रोथ रेट हो जो कि चेंजिंग ट्रेंड के साथ हो, और हमारी अजम्पशन फिर ये हो जाती है कि आपका जितना भी ग्रोथ रेट है दैट विल वेरी, दैट विल चेंज ओवर द टाइम या ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो वो आपके क्या होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। सो द वेरिएबल ग्रोथ मॉडल एज्यूम्स द डिविडेंड फॉर ईच शेयर विल ग्रो टू 2 और मोर डिफरेंट ग्रोथ रेट्स। उसके आपके डिविडेंड जो एक सर्टन शेयर के लिए आपके डिविडेंड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है विद सर्टन ग्रोथ रेट, क्योंकि आपकी कंपनी की नेट इनकम चेंज हो रही होती है, अकॉर्डिंगली उसकी डिविडेंड भी, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन कुछ ऐसे वेरी कर रहे होते हैं कि नेट इनकम लेट्स सपोज अगर कांस्टेंट भी आ रही है या बेहतर आ रही है तो डिविडेंड लेट्स सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कंपनी की वो वेरी करी होती है, फॉर लेट्स सपोज कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जी एक साल मैंने 1000 देना है, अगले साल में हमने जो है इनको 2000 दे, उससे अगले साल जो है हमारी जो रिमेनिंग इनकम थी वो थी तो ठीक, लेकिन हम कहीं एक्सपेंशन करना चाहते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम रिटेन अर्निंग ज्यादा रख लेते हैं और हम डिविडेंड थोड़ा कम कर देते हैं, तो आपके डिविडेंड की वैल्यू कम होगी। अगले साल फिर जो एक्सपेंशन की थी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इनकम आई है, फिर इनकम ज्यादा दे दी। जब ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वेरिंग डिसीजन होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस पे सब डिपेंड करता है, तो आपके जितने भी ग्रोथ रेट होते हैं, आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है या ग्रो कर रहा होता है उसके डिविडेंड कैश फ्लोज वो बिल्कुल वेरी कर रहे होते हैं और चेंज होते हैं। सो आपके वेरिएबल ग्रोथ मॉडल के अंदर जो आपकी assumption होती है, the assumption is that your growth rate will vary over the period of time. So let's look at the formula for variable growth model. इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है तो अपनी don't lose your concentration right now, बहुत जरूरी है कि इसको फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किया जाए। We have P naught is equals to summation T is equals to 1 to n D naught into 1 plus G1 over power T whole over 1 plus RS power T plus summation T is equals to n plus 1 till infinity dn into 1 plus G2 power T whole over 1 plus RS power 2. Now इसमें क्योंकि हमने अगर फॉर्मूला को देखो तो we have G1 and G2, we have two different growth rates. आपकी डी नॉट की वैल्यू आप फर्स्ट ईयर अगर ये देखते हो समेशन में ये की G1 एक ग्रोथ रेट सर्टन ग्रोथ रेट है उसके ऊपर पहले वैल्यूज फाइंड आउट की, फिर वो ग्रोथ रेट जिसपे आगे कांस्टेंट है उन पे वैल्यूज फाइंड आउट की, उनको ऐड किया तो हमारे पास प्राइस ऑफ स्टॉक आ जाएगी विद वेरिएबल ग्रोथ रेट्स। हम इसके कुछ फॉर्मूला और कुछ और चीजों को देखते हैं। फर्स्ट यू हैव टू नोट दिस थिंग दैट द सेकंड फेज ऑफ द वेरिएबल ग्रोथ मॉडल अज्यूम्स द डिविडेंड विल ग्रो एट अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अब इसमें assumption क्या है, इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं और फिर देखते हैं कि इनकी assumptions क्या है। द फर्स्ट थिंग इज P naught cap is equals to D1 over 1 plus RS power 1 जो हम एक मॉडल यूज करते रहे हैं, D2 over 1 plus RS power 2 plus up to D infinity whole over 1 plus RS power infinity। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी इसमें दो फेजेस आते हैं, द फर्स्ट फेज 1 जिसमें G1 आ गया, फिर आपका फेज 2 आता है जिसको हम G2 कह देते हैं। फेज 1 में you have growth rate G1 you have growth rate G1 for certain years, then growth G2 become constant for next coming years. सो ये आपकी पी नॉट की कैप की वैल्यू फाइंड आउट करता है इस फेज और उस फेज के ग्रोथ रेट को मिला के। अब इसमें होता क्या है, ये assumption क्या है, अगर आप इसका इस तरह से देखें ग्राफ तो 10% 20% इंक्रीज है, लेट्स सपोज 10% इंक्रीज है 20%
अब जी फर्स्ट आपकी ग्रो किया था कंपनी ने 10% पे, फिर कंपनी ने और 10%, फिर कंपनी ने 30%। इस 30% पे जाके कंपनी आगे फॉर एवर कॉन्स्टेंट होगी कि आगे जितना ग्रोथ रेट होगा वो एक सर्टन 10% पे, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10% पे। तो यहाँ पे हो सकता है 10%, 20%, 30% इंक्रीज आ रहा हो, तो उसके सर्टन लेवल के बाद कंपनी ग्रो कर लेगी एक सर्टन लेवल के ऊपर। यहाँ हम इसका अलग से ग्राफ बनाएं, डेवलप करें, तो दैट वुड बी फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोथ रेट थी जी 10%, अगले साल 11%, उससे अगले साल 13%। ठीक है, तो कंपनी ने ग्रो किया 13, फिर क्या हुआ कि कंपनी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के 8% पे आके कांस्टेंट हो गई। दैट मीन्स कंपनी डाउन करेगी और फिर आगे एक कांस्टेंट लेवल के साथ 8%, 8%, 8% पे इंक्रीज करेगी। वो जो चेंजिंग ट्रेंड है, दिस इज योर वेरिएबल ग्रोथ। तो उसमें हम क्या करते हो कि पहले आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो कि अपने फर्स्ट ग्रोथ रेट के साथ कि यार अगर पहला ग्रोथ रेट मेरा 10% है फॉर 3 इयर्स, तो पहले 3 सालों के लिए वैल्यू फाइंड आउट की, डिविडेंड फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सर्टन लेवल पे चेंज होता है, आपका ग्रोथ रेट चेंज होकर 8% हुआ है, उस 8% के आगे ग्रोथ रेट जितना भी है वो कांस्टेंट हो गया कि आगे फॉर एवर जब तक की डिविडेंड मिलेगी तब तक फॉर एवर हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। जो फेज 2 में आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है, उस ग्रोथ रेट की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। क्या पहला आप डिविडेंड सबके लिए फाइंड आउट करते हो उस ग्रोथ रेट पे जो कि पहले गिवन था। जब ग्रोथ रेट चेंज हुआ तो उस ईयर से आगे जितनी वैल्यूज वो कांस्टेंट है, उधर आप कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला लगा के उस ईयर पे वैल्यू प्राइस फॉर सपोज 3 के बाद चेंज हुआ है तो P3 फाइंड आउट कर ले, 4th ईयर के बाद चेंज हुआ तो P4 फाइंड आउट कर लेते होंगे। आगे तो फॉर एवर कांस्टेंट है, उनकी P4 प्राइस फाइंड आउट की, बाकी सबके डिविडेंड ग्रोथ रेट के साथ फाइंड आउट किए, उन सबको ऐड किया तो आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। स्टॉक GP हैज एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 16% for the first 3 years. That means for the next 3 years आपके कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 16% है and 8% thereafter. उसके बाद 8% it become constant at 8% forever. आगे जितने भी coming up years के लिए 3 years के बाद वो 8% हो गए। Each share of stock just received an annual rupees 3.24 dividend मिलेगा उसको per share, just paid dividend है तो it's a D naught. The appropriate discount rate is 15%. What is the value of the common stock under this scenario? अब देखें क्या है। GP has a stock expected growth rate of 16%. That means this is your G1 for कितने years? 3 years and 8% thereafter, that is G2 आपके forever हो गया है। Each share of stock just received an annual of 3.24 dividend आ गया तो this is your D naught क्योंकि अभी receive किया। The appropriate discount rate is 15%. This is RS. We have to find the value for stock today, that is P naught cap और P naught. इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है कि टाइमलाइन बनाई जाए। लेट्स लुक एट दिस थिंग कि हमारी टाइमलाइन किस तरीके से बनेगी। हमारे पास ईयर 0 है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4, 5, 6 एंड फॉर एवर आगे इसी तरह ईयर चलते रहेंगे। हमारी assumption क्या थी कि we have the value of D naught that is equals to 3.24. तो इसके 2 phases of growth है। The first is 16% that starts from year 0 to 3. तो आपकी 16% for first year, 16% ग्रो की कंपनी सेकेंड ईयर पे और 16% ग्रो की थर्ड ईयर तक। तो दैट मीन्स कि ईयर 1 के बाद आपका D1 16%, फिर 16% D2 और फिर 16% इंक्रीज करके D3 की वैल्यू आई। उसके बाद ये कहते हैं कि थर्ड ईयर के आगे जितने भी ग्रोथ रेट है वो 8% हो गया फॉर एवर, आगे सब कंपनीज के लिए फॉर एवर ग्रोथ रेट हो गया। तो D4 के लिए जब हम ग्रोथ रेट यूज करेंगे तो 8% होगा, क्योंकि थर्ड ईयर से आगे ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गई है। तो इस थर्ड ईयर पे हम क्या करते हैं, P3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं उस ईयर से आगे। दैट मीन्स कि जब देखें हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं तो P नॉट या P1 फाइंड आउट कर। P1 का मतलब क्या, ईयर 1 पे आगे जितने ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है, उस सब की आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली ईयर 1 पे। अब अगर हम इधर हैं तो हम ये कहते हैं कि थर्ड ईयर से आगे वैल्यू कांस्टेंट हुई है तो हम थर्ड ईयर पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो जितने आगे ईयर कमिंग ऑफ ईयर्स है उनका डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रहा है, वो उन सब कमिंग ऑफ ईयर्स के जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है उन सब की आज थर्ड ईयर के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर ले। थर्ड ईयर पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर P3 ये आ गया, प्लस इससे पहले जो कमिंग ऑफ ईयर्स थे उन पे कुछ डिविडेंड मिले हुए थे, उन सब के डिविडेंड वो कैश फ्लोज प्लस उस ईयर से आगे जितने कांस्टेंट है उसकी प्राइस ऑन द थर्ड ईयर आगे कांस्टेंट ग्रोथ के साथ, इन सब को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आगे इधर P नॉट कैप की वैल्यू आ जाएगी।
अगर आप थोड़ा सा इसको ये देखें कि क्योंकि हम इसको अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास 2 फेजेस ऑफ ग्रोथ है। द फर्स्ट इज कि आपके फर्स्ट ग्रोथ जो है उसमें 16% इंक्रीज आ रहा है, तो ये 16% आपके कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, D1 D2 D3। सेकेंड फेज उसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर सेकेंड फेज देखें तो वी हैव डिविडेंड फॉर 4th ईयर और उससे आगे जितना भी है दैट विल बी 8%। दैट मीन्स कि 3rd ईयर से आगे जो ग्रोथ है वो 8% पे है और फॉर एवर। अब क्योंकि इससे आगे हमारी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गया है तो हम इधर क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यूज करेंगे 3rd ईयर पे, कि 3rd ईयर पे हम वैल्यू फाइंड आउट करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दोस फ्यूचर कैश फ्लोज जो 3rd ईयर के बाद आने हैं जो कांस्टेंट ग्रोथ है, और इससे पहले वालों के डिविडेंड फाइंड आउट करके दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर आप इसका जो फॉर्मूला है अब जो हम इस ईयर के लिए जो कांस्टेंट ग्रोथ से आगे यूज करेंगे दैट विल बी P3। दैट मींस P3 इज इक्वल्स टू D4 ओवर RS माइनस G। तो वी कैन यूज दिस मॉडल फॉर कांस्टेंट ग्रोथ दैट इज एट 8%। तो ईयर 3 से आगे, ईयर 3 जब एंड होगा उससे आगे जितने ईयर्स हैं उन सबके लिए कांस्टेंट ग्रोथ है तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आगे जितने भी ईयर्स हैं उन सब की ग्रोथ रेट टाइम T पे हम लोग चेंज करके P3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Now let's solve the question में हम अगर वैल्यूज देखें तो RS is equals to 15%. We have G1 is equals to 16% for 3 years. We have G2 is equals to 8% forever constant at T is equals to 3. And we have dividend D naught is equals to 3.24 rupees per share. और हमने फाइंड आउट क्या करना है, P नॉट कैप की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके हमें हमारे पास टाइमलाइन तो है, एक बार दोबारा से इस इधर टाइमलाइन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 forever. So we have D naught, we have D1, we have D2, we have D3, we have D4, D5 and इससे आगे हमारे ग्रोथ रेट 8% है, इस पे हमारा ग्रोथ रेट 16% है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। तो हम यहाँ पे P3 हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। सो द फॉर्मूला विल बी गोइंग टू यूज इस P नॉट कैप इज इक्वल्स टू D1 ओवर जो हमने स्टार्ट में फॉर्मूला यूज किया D1 ओवर 1 प्लस RS पावर 1 प्लस D2 ओवर 1 प्लस RS पावर 2 प्लस D3 ओवर 1 प्लस RS पावर 3 प्लस क्योंकि हम 3rd ईयर से आगे कांस्टेंट कर रहे हैं तो वी विल हैव P3 ओवर 1 प्लस RS पावर 3। अब इधर 3 क्यों हमने लिया, हम ये कहते हैं कि हम P नॉट क्या फाइंड आउट करते हैं, P नॉट कैप इज द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। आज फाइंड आउट करते हैं कि आगे डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज है उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। D1 था, D1 को हमने 1 साल पहले दैट मींस 1 ईयर पे हमने इसको डिस्काउंट किया, D1 ओवर 1 प्लस RS पावर 1 डिस्काउंट किया फर्स्ट ईयर 1 ईयर के लिए। 2 साल पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पावर 1 प्लस RS पावर 2 D2 के ऊपर हमने 2 ईयर में डिस्काउंट किए, 3rd ईयर पे 3rd ईयर। P3 क्योंकि 3rd ईयर से आगे कांस्टेंट है, P3 की वैल्यू मुझे 3rd ईयर के एंड में मिल जाएगी तो उसको मैं जब डिस्काउंट करूंगी आज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3rd ईयर पे जो प्राइस है उसको आज पे डिस्काउंट करने के लिए तो भी मैं पावर 3 ही लूंगी। तो 3rd ईयर पे डिस्काउंट करूंगी 1 प्लस RS पावर 3। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि आपकी 1 प्लस RS पावर 1 पावर 2 पावर 3 और फिर P3 के लिए भी पावर 3 हो जाएगी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड out is we have to find out the value of D1, D2, D3, P3. If we solve out this question, we will have D1 is equals to D naught into 1 plus G. We'll be finding out D2, we'll be finding out D3, we'll be finding out D4 and we'll be finding out P3. D1 into 1 plus G, D2 into 1 plus G, D3 into 1 plus G, P3 is equals to D4 over RS minus G। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है D1, D2, D3 प्लस P3, तो D1 की वैल्यू चाहिए, D2 की चाहिए, D3 के लिए, लेकिन D3 की चाहिए, लेकिन जब हम D4 की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें P3 चाहिए। P3 के लिए फॉर्मूला में D4 ओवर RS माइनस G, इसलिए हम D4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो D1 इज इक्वल्स टू हमें पता है कि D नॉट इज 3.24 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना हमारा परसेंटेज था 0.16 16% जी ग्रोथ रेट है। तो हम क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर पे इधर भी अगर हम एक बार बना लें अच्छा होता है कि उससे क्वेश्चन जो है वो क्लियर रहता है क्योंकि हम स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं। तो लेट्स लुक एट दिस थिंग 16% D1, 16% D2,
16% D3 एंड 8% इस पे D4 एंड आपके यहाँ पे P3 की वैल्यू आएगी। तो जी हमने क्या देखा कि D1 हमने फाइंड आउट किया कितना 16%, तो द आंसर वुड बी 3.76 रुपीज। When we talk about D2 का क्या है जी 3.76 D1 into 1.16 16%, क्योंकि D2 पे भी हमारा ग्रोथ रेट 16% था। द आंसर वुड बी 4.36 rupees. If we calculate, you must have a paper pen and calculator to calculate these values. मेरे साथ साथ values calculate करें तो आपको answers आ जाएंगे। We have 4.36 D2. D3 is equals to D2 into 1 plus G, that is 4.36 into 1.16. Why 16%? क्योंकि third year पे भी second year से third year तक 16% पे grow किया। The answer is 5.06 rupees. When we talk about D4, that means growth fourth, इस पे ग्रो 4 के ऊपर अगर आप टाइम लाइन पे देखें तो 4th ईयर पे जब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब 3rd से 4th ईयर में जो ग्रोथ था वो 8% थी। 8% ग्रोथ रेट अगर हम लें तो दैट इज 5.06 इंटू 1 प्लस 0.08। अब यहाँ पे जो हम ग्रोथ रेट लेंगे, क्योंकि हम D3 से D4 पे जा रहे हैं, D4 के लिए हमारा ग्रोथ रेट कितना है कि 3rd ईयर से 4th ईयर पे सिर्फ 8% इंक्रीज हुआ और फॉर एवर कांस्टेंट है, तो हम इधर ग्रोथ रेट जो है वो 8% लेंगे। तो आंसर वुड बी 5.46 रुपीज। नाउ व्हेन वी फाइंड आउट P3 दैट इज D4 ओवर RS माइनस G, तो इसमें वैल्यूज पुट करें 5.46 ओवर RS की वैल्यू हमें पता है 15% है। यहाँ पे भी हम ग्रोथ रेट 0.8, क्योंकि हमने वो ग्रोथ रेट लेना है जो कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट वाला ग्रोथ रेट लेते हैं दैट इज 8%। तो द आंसर वुड बी 78.068 rupees. So we have P3 that is 78.068. Now let's put these values into the formula जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, दैट इज P नॉट कैप इज इक्वल्स टू D1 1 प्लस RS पावर 1 प्लस D2 1 प्लस RS पावर 2 प्लस D3 1 प्लस RS पावर 3 प्लस P3 over 1 plus RS power 3। ये खुद ही रेड कर लें। Now we have P naught cap is equals to D1 की वैल्यू आई है 3.76, RS we know is 15%, 1.15 power 1 plus D2 is 4.36 over 1.15 power 2 plus D3 is 5.05 power 05 or 06, it was approximately 0506 power 1.15 power 3 plus P3 हमारे पास आया 78.068 over 1.15 power 3। P naught cap is equals to, जो हमारे अब यहाँ पे आंसर्स आए, इनके आंसर आए हैं, तो इन सब को कैलकुलेट करके एडिशन करके वी हैव 51.26। आप हर एक की मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया, आप हर एक की D1 के लिए और इसकी वैल्यू, इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करें, इसके और इन सबको ऐड करें, तो वी हैव द आंसर ऑफ P naught cap is rupees 51.26. That means if we have a variable growth rate of 16% for first 3 years and then 8% constant forever, we have the value or the price of a stock today, that is the present value of that stock, and dividend cash, variable dividend cash flows, the value is 51.26 rupees. So this is how we find out the value of variable growth model. That was all about your chapter of stock valuation. We end here the stock valuation chapter. We will be moving on to financial statement analysis in our next lecture. Let's look at the summary of this today's lecture. Before that, let's summarize the chapter as well. We studied that what are the key differences between bonds and the stocks. Both are the long-term debt instrument, financial assets. We find out that bonds do not have voting right. They do have preference over common stock, and they do have fixed interest payments, and they do have maturity. While those stocks do have voting right, but they do not have preference in case of claims of assets or distribution of income, and they do not have maturity, but they have their value, dividend value of return, the return in the form of dividend.
Then we decided that then we discussed that there are two different types of stock: the preferred stock and the common stock. Preferred stock are those who are those owners who have no voting rights, but they have preference in case of claims of assets on liquidation and distribution of income. They have fixed interest payment, they have not interest payment, they have fixed dividend. So they have the characteristics of both bonds and stocks. When we talk about common stock valuation, they do have voting right, they have preemptive right, they do not have preference in case of claims of assets or a distribution of income, and their dividend is on the discretion of the board of directors. And they have their proxy and proxy fight and other certain rights. Then we discussed that preferred stock valuation कि कभी भी किसी भी asset की valuation करनी हो तो we look at the present value of future expected cash flows. So in case of preferred stock, it was VP is equals to DP over RP. Then we discussed there are two different kind of cash flows or gains that common stock valuation that can be get from the common stock valuation or the preferred stock valuation. The stock valuation में use होता है. The first thing is your capital gain, that is from the future buying and selling of your common stock or preferred stock, और उससे जो भी profit आता है that is your capital gain. And another gain is from your future dividend, that is dividend gain. That means that the amount or the return you get on your investment as a dividend from the company. Then we discuss different dividend growth model जो कि common stock valuation के लिए use होते हैं. The three different assumptions थी. The first one is that the growth rate is constant. That is for the constant growth model, also called Gordon model. The formula is P naught cap is equals to D1 over RS minus D. Similarly, if we are finding out the price for the third year, P3 is equals to D4 over RS minus D. If we are finding the value for the 27th year, P20, let's suppose 27 year के आगे growth rate constant हो गया, तो P27 is equals to D28 over RS minus D. Similarly, आप values find out करते हो, the assumption is that the growth rate is constant. Then we talk about zero growth model, that the assumption is that there is no growth rate or the G is equals to 0, that the company will grow at the growth rate of 0%. That means आपकी कोई growth rate नहीं होती. The formula is P naught cap is equals to D naught over RS. जो आपका constant growth का formula उसमें G की value 0 डालें तो आप अपने P naught cap zero growth model की value find out कर सकते हैं. Then we found out variable growth model, that is we have different growth phases. तो डिफरेंट ग्रोथ फेजेस होते हैं. एक ग्रोथ फेज वो है जिसके अंदर एक ग्रोथ रेट या दो ग्रोथ रेट है, देन उसके बाद वो एक सर्टेन लेवल पे जाके एक सर्टेन ईयर के बाद आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है. तो वी से कि फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 16% था, तो अगले थर्ड ईयर के बाद वो 8% पे आगे कांस्टेंट हो गया. तो हम ना दो ग्रोथ डिफरेंट फेजेस कंसिडर करते हैं और फिर अपनी वैल्यू या प्राइस ऑफ स्टॉक टुडे फाइंड आउट करते हैं. दैट इज कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे अब किस तरह से करेंगे कि पहले हम डिविडेंड जिन ग्रोथ फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 16% है, D1, D2, D3 16% पे फाइंड आउट कर लिया, प्लस हम जिस ईयर से आगे हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है हम उस ईयर को फाइंड आउट करते हैं कि P3 प्राइस ऑफ अ स्टॉक ऑन थर्ड ईयर. तो हम आगे क्योंकि इससे आगे ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो वहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला लगा के हम D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस P3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास प्राइस ऑफ अ स्टॉक उसको फिर डिस्काउंट करते हैं RS की वैल्यू के ऊपर, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है या प्राइस ऑफ स्टॉक टुडे आ जाती है, प्राइस और वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे आ जाती है. तो दिस इज योर वेरिएबल ग्रोथ फॉर वेरिएबल ग्रोथ मॉडल. सो हम यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक valuation and common stock valuation को हमने summarize किया है. This was all about your stock valuation and your today's lecture. Inshallah, we'll be looking at financial statement analysis in our lecture number 13. Thank you.